हाँ, आज के लेक्चर में हम एक ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे that will accept all the strings of a to the power n and b to the power n, b to the power m, where n and m are greater than equal to 1. So what is the minimum string, that is a and b? So first we have to design a finite automata TFA for accepting a and b. A and b, q1, q2. Okay, now according to the conditions, there may be any number of the a's. Okay, it cannot start with b. So when it start with b, we will go to the dead state, that is q3, and at q3 we have a and b, then repeated here. So after a, the any string of a means input is a, we repeated here. Okay, if at the last b is here, we can repeat it here, but at last we cannot find the a. If we find a, then it should be go to the dead state. Okay, so the first example is completed. Now we will go to the second example. The same question, we are having one thing, that is if it is m and n is greater than equal to 0 greater than equal to 0, then what should be the DFA for the this question? Okay, now as we have n and m is greater than equal to 0, means initial state is also the final state. Q naught initial state and the final state, and any number of the a's should be here. So any number of the a means a, then we will go to the next state. We have v, and after that we have number of the b's, number of the b's. So after b we cannot find any a, so it is go to the dead state q2. अगर हमारे पास a है, then a will repeat any number of the a नहीं है, only b है, then it is also accepted. ठीक है, कोई भी string नहीं है, then it is also accepted. So this is the initial and final state. Then a, number of the a's, b, number of the b's. After b we cannot find the a, we find a, then it will go to the dead state. Right. Next question इसी की तरह है अगला क्वेश्चन भी. अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हमने कर दिया इनपुट स्ट्रिंग में. इनपुट स्ट्रिंग ए बी, एक सी भी ले लिया हमने यहाँ पर. सी की पावर एल ले लिया है. एम एंड एन आल्सो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो फर्स्ट 1 की कंडीशन ले लेते हैं. एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये 1 से ग्रेटर देन है, तो इसके लिए डिजाइन करना है. अभी हमने डिजाइन कराई था, उसी की तरह डिजाइन करना शुरू करते हैं हम. Q naught A, then B, then C. Minimum state will reach on the final state Q1, Q2, Q3. final state पर पहुंच के हम, it cannot start with BC. A है, B से स्टार्ट नहीं हो सकता, C से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो डेड स्टेट पर पहुंच जाएंगे. इनपुट A B C कुछ भी मिलता रहे. A के बाद B आएगा, C नहीं आएगा. अगर C आ गया, C will not come, so we will go to the dead state. Same here. A can be repeat here, any number of the A हो सकते हैं. Then B, any number of the B यहाँ हो सकते हैं. B C के बीच में A नहीं आएगा. If A is came here, then we will go to the dead state. अगर A आ जाता है तो ठीक है. तो फाइनल C आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट C रिपीट होता रहेगा. आफ्टर C अगर आपके पास A एंड B फाइंड होता है, we will go to the dead state. ये हो गया इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा. नेक्स्ट अगर हम डिजाइन करें फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर इन सेम क्वेश्चन, हम एक चेंज कर रहे हैं. वो चेंज आपके पास है दिस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं. ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
0 ग्रेटर देन इक्वल टू करने पर क्या फर्क पड़ेगा आपके पास। अब स्ट्रिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन हो रहा है हमारे पास, सपोज क्यू नॉट, दिस इज आल्सो द फाइनल स्टेट, ठीक है। ए इज रिपीटेड हियर, बी is also the final state, q1, b is repeated here, then आपके पास c also the final state, also final state q2, c is repeated here, only c is also here, so केवल c भी हो सकता है, केवल a, केवल b, केवल c, a के बाद b, बट a के बाद c नहीं होगा। अगर a के बाद c आ जाए तो क्या होगा, अगर आपके पास c से स्टार्ट तो हो सकता है, तो इसके 3 इनपुट्स हो गए। इनपुट देखना है आपको, इसके ए बी सी 3 इनपुट्स हो चुके हैं। इसके आपके पास ए नहीं है, तो इसका मतलब ए, अगर बी के बाद ए नहीं आएगा, आपको भी पता है। अगर बी के बाद ए आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको डेड स्टेट पर पहुंचाना है। ऐसी सी के बाद में ए और बी नहीं आएगा तो भी आपको डेड स्टेट में इसको पहुंचाना है, तो डेड स्टेट में पहुंचाइए इसको। यहाँ से आइए, अगर ए मिलता है तो डेड स्टेट पर आप पहुंचा देंगे पोस्ट Q3 पर, ए बी सी कुछ भी मिलता रहे, ऐसे सेम यहाँ पर आपको ए और अगर बी मिलता है तो डेड स्टेट पर पहुंच जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए व्हिच एक्सेप्ट all the strings over sigma is equal to ab in the form a to the power 3 w b to the power 3, where w is any string over ab। ओके, सो इसको डिजाइन करते हैं। तो मिनिमम आपको पता है ए पहले रहेंगे, देन डब्ल्यू, देन बी, ये रहेगा आपके पास। तो ए 3 रहेंगे, 1 2 3 ए, क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3, A, A, A। It cannot start with B, A के बाद B नहीं आना चाहिए, सेकंड A के बाद भी B नहीं आना चाहिए, ठीक है। से W, W का मतलब A B कुछ भी, A B एनीथिंग, अब Q4, Q5, Q6, Q7, B B B, ये हो गया आपके पास 3B हो गया। ये डेड स्टेट सपोज Q7 Q8। अब आपके पास इनपुट देखना सकते हैं, ठीक है। यहाँ इनपुट आपके पास ए बचा है, ए आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ए आए तो ऐसी स्टेट पर पहुंच जाए कि जहां से लास्ट में 3B मिल जाए। यहाँ ए आए क्योंकि एनीथिंग इज डब्ल्यू, ए आए तो ऐसी स्टेट में पहुंच जाए जहां से लास्ट में आपको बी मिल जाए। अगर आपके पास ए आए तो ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से आपको 3B मिल जाए। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, हर एक के दोनों स्टेट्स हो गए। अब चेक कर लें तो सब हो चुका है, इसका मतलब ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन हो गया डीएफए। सेम क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं थोड़ा सा चेंज करके। थोड़ा सा चेंज का मतलब है, यहाँ सपोज मैं दे दूं आपको ए, अगेन बी की जगह ए कर देता हूं मैं। तो ए करने पर क्या होगा, यहाँ पर ए क्यूब डब्ल्यू ए क्यूब। अब लास्ट में ए से डिलीट हो रहा है, बस इतना चेंज है। तो ए से आपके पास लास्ट में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है
तो हम चेंज कर देते हैं ए और बी को ही आपस में, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, आपको पता ही लग गया क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपने ए ले लिया 3 3a, अगर बी मिल जाए तो रिपीट, बी मिल जाए तो रिपीट, बी मिल जाए तो रिपीट, सेम की होने पर यहाँ आ गया, राइट। नाउ तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, न्यू क्वेश्चन करते हैं। एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है हमें। डीएफए over sigma is equal to a, only the one input, that is a, that accept every string e to the power n where n is greater than equal to 0 and n is not equal to 3। इसका मतलब है कि 3 नहीं हो सकता, n 3n नहीं हो सकते, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग 0 से, इसका मतलब फर्स्ट स्टेट इनिशियल स्टेट होगी, पहला a कैन बी एक्सेप्टेड, सेकंड a कैन बी एक्सेप्टेड, q1 q2, third a cannot be accepted, so it is not a final state. After that fourth a is accepted, it is should be the final state, q3 and q4. Now any a or string of a can be accepted, so this attempt is designed here. Next हम डिजाइन कर रहे हैं एक DFA over sigma is equal to AB that accept every string where a's are even and b's are odd। और ठीक है, ये आपको डिजाइन करनी है। तो आपने क्यू नॉट, ए इवन है, पहले ए के लिए करा लेते हैं, ए ए Q2 Q3 ए ए, बी के लिए करा लेते हैं हम, बी इवन बी हो गया, ऑड बी हो गया, बी, सो बी बी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने डिजाइन किया अपना एक ऑटोमेटा that will accept even number of the a's and odd number of the b's।